इम्पोर्टेंट है पूछना. Okay, so friends, before we begin again, I will say the same thing again, that जो चीज हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते उसे हम लोग improve नहीं कर सकते. That improvement is required for the growth of a business, and to improve we need to track everything कि हमने क्या क्या किया है. हमारी वो पूरी दिनचर्या हो, डे का लिस्ट हो, हमारी एक्टिविटीज हो, और whatever it is. And in this regard, we have someone who has a rich experience of tracking businesses, and in that way, he has actually created something which is very unique for म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. ये लोग हमारे इंडिया के बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिसमें एक एनजे एक बहुत बड़ा नाम है. उनके लिए भी उन्होंने सीआरएम सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, और भी बहुत सारे बड़े नाम हैं जिनके लिए दे आर यूजिंग these सॉफ्टवेयर्स. And let's understand and see how things work. And then if we think this is workable, either we utilize their services or maybe some other form of services. But the important thing is कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ एक ट्रैकिंग सिस्टम रखना चाहिए, so that हम अपनी एक्टिविटीज को और अपने बिजनेस को ट्रैक कर सकें. On this note, I'll request Mr. Limesh Parekh to just introduce or tell something about himself, why he is into this business, what is his, why did he got motivated to create a CRM, what is his background and things like that, and then we will take it forward from there. In the meantime, I'll request also Shali, I think she's there. I'll make her the co-host also. Yes, I think now Vishal is there. हाँ सर, तो सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर हो सके ना तो कैमरा ऑन रखिए, तो बातचीत करने वाला फीलिंग आएगा. क्योंकि मैं अंग्रेजी में कॉरपोरेट प्रेजेंटेशन नहीं देने वाला हूँ, थोड़ा बातचीत करने वाले हैं. तो बहुत से लोगों से रिक्वेस्ट है. प्रवीण बुबाड़े हैं, तुषार गुप्ता है, दिनेश कुमार है. Lot of people know, Rameshji, are also requesting in English also. So while you speak in या English, आई विल मिक्स बोथ द लैंग्वेजेस. make so that no, the people from Tamil Nadu or Kerala are able to also understand. Yeah. Yes, yes. So I will see that I mix both the things. तो क्या होगा कि दोनों भाषाएं समझने वाले लोग कंफर्टेबल होंगे. ये मनोज लखोटिया जी है, राजेंद्र गुप्ता है, रश्मि महाबला शेट्टी है, गौरव हांडा है, अनूप कंदारी है, नीलेश हेंद्रे है. मेरा आप सबसे मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोग कैमरा ऑन रखिए. इफ यू हैव कैमरा ऑन वी विल हैव दैट फीलिंग ऑफ ए मीटिंग. ठीक है. एंड अनदर थिंग, आई एम नॉट ए प्रोफेशनल ट्रेनर और एजुकेटर. मैं सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता हूँ. सो आई विल नॉट बी वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स दैट यू हैव विटनेस्ड, बट आई विल बी एबल टू टेल यू the reasons why we are meeting. And as Kanak sir told, first let me share with you why we are into this business of CRM. Actually, we are a 26-year-old company, and we started our business as manufacturers of thin client. So thin client is a small computer, right? Back then it was in huge demand, and we were India's number one thin client developer at that time, right? That was from like 2002 3 onwards till almost 2011-12. We were into thin client business, and then we discontinued. But when this business was growing, we realized that if we do not have systems properly, if we do not have processes, then we will be killed by the growth. ठीक है. धंधा नहीं हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है, होगा तो भी मर जाएंगे. मतलब नहीं होगा तो मर जाएंगे, होगा तो भी मर जाएंगे. ये वाला परिस्थिति आएगा. So we started implementing CRM in our company back in 2003, 2004. Okay. And when I say CRM, there is lot of misunderstanding about what the CRM is. You might think I'm slightly confused while I speak, because I'm not accustomed to see lot of this rectangular boxes. Generally in meetings, people switch on the camera so that the meeting has the flavor of meeting.
but anyways, I respect the privacy as it is called nowadays. So we started developing CRM for ourselves. We implemented it first, and then we started selling it in 2009. In 2009, it was our first CRM sales, which happened accidentally. And when I say CRM, I don't mean that sending WhatsApp to clients or sending notification to client. That is one small part. CRM means you and your customer and the entire journey of your customer, whatever communication you are doing for them, whatever processes that you are doing for them, everything is CRM. Okay, so CRM is not one single thing, or having a database of customers, having facility to send email to all the customers is just not the CRM. CRM is much larger. Okay, so CRM is basically operating system for your team. ठीक है, तो our first product is संगम CRM जो 2009 में आया, and then in 2021 we sold CRM to NJ Wealth in सूरत. अच्छा, हमारी कंपनी का नाम एनजे है, बट दैट इज ENJAY, और जो सूरत वाले हैं उनका नाम एन और जे है. उनका एन और जे नीरज चौकसी और जिग्नेश देसाई का है. हमारा वाला एन और जे नरेंद्र और ज्योत्सना का है, जो मेरे माता पिता है. और हम लोग तीन भाई है जिन्होंने ये कंपनी चालू किया है. एंड करंटली वी आर अराउंड 130 प्लस पीपल टीम. तो जब भी 2021 में उन्होंने खरीदा ना, उसके बाद उनके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने खरीदा CRM. और तब हमें पता चला कि ये जो पूरा फाइनेंस वाला इंडस्ट्री है ना, दे नीड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ CRM. उनको स्टैंडर्ड रेगुलर CRM से काम नहीं चलता है. ठीक है, तो इसके लिए वी क्रिएटेड, first we studied lot of things in the market, and lot of MFDs were very helpful, very cooperative. उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया. ठीक है, और बहुत कोऑपरेट किया पूरा प्रोडक्ट बनाने में. एंड संचय CRM, जो प्रोडक्ट का हम नाम बात कर रहे हैं, संचय CRM वाज लॉन्च्ड ऑन 22 फरवरी 2025. मतलब अभी 5 दिन पहले संचय CRM को 13 महीने कंप्लीट हुए, 13 months, एंड वी हैव 157 क्लाइंट्स. तो किसी नए इंडस्ट्री में प्रोडक्ट आए और 13 महीने में 157 क्लाइंट आए, ये सॉफ्टवेयर की लाइन में अच्छा माना जाता है, स्पेशली दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके, तो ये संचय CRM करता क्या है ना, इसका बात करते हैं. तो एक लाइन में अगर बात करना है ना, तो देर आर 2-3 कंपोनेंट्स ऑफ दिस MFD बिजनेस. अच्छा, मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना था जिसका आप जवाब चैट में दे सकते हैं, और देना जरूर, क्योंकि उसके हिसाब से आई विल बी एबल टू डिसाइड कि आगे कौन सी लाइन में मुझे ज्यादा बोलना है. आप में से कितने लोगों का ना 5 जन से ज्यादा का टीम है? या आप टीम साइज चैट में लिख दो तो भी चलेगा. इफ यू आर अलोन, राइट 1. हाँ, रत्नी फिंसर ने लिखा ना मी, दैट्स ओके फाइन. सो वी गॉट रिप्लाई फ्रॉम 3 people, 4, 5, 6, 7, 8. हाँ सी, ठीक है. तो मतलब देर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम 1 to 10. ठीक है, तो दो चीजें हैं. एक तो आपको वो प्रोसेस चलाना है, और दूसरा आपको टीम मैनेज करना. राइट, और ये प्रोसेस का और टीम का ना आपस में बड़ा एक अलग प्रकार का रिलेशन है. प्रोसेस कौन सा चलाना है, तो आपके क्लाइंट्स के टास्क आते हैं, यू हैव टू मैनेज दैट. आपके नए लीड्स आते हैं, यू हैव टू मैनेज दैट. आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनके साथ आपको मीटिंग्स करने हैं, उनका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है. देन देर आर लॉट ऑफ कंप्लायंसेस, रिस्क प्रोफाइलिंग करना है, कस्टमर ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है. तो ये जो प्रोसेस है और पीपल है, उसके बीच में कुछ टूल्स आएंगे जिससे है ना ये प्रोसेस इजी हो जाए, फास्ट हो जाए, एफिशिएंट हो जाए, ऑटोमेटेड हो जाए. ठीक है, तो ये प्रोसेस का, पीपल का और टूल का रिलेशन होता है. अब इधर थोड़ा गड़बड़ है, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो कंफ्यूजिंग लगे ना आपको, तो चैट में लिखना कि वेरी कंफ्यूजिंग, तो मैं आपको एक अलग तरीके से समझाऊंगा. राइट, तो ये जितने भी टूल्स हम यूज करते हैं ना, वो टूल्स अकेले काम नहीं करेंगे, पीपल ही विल रन दिस टूल्स. राइट, और अगर ऐसा होगा कि पहले पीपल आ गए और टूल्स और प्रोसेस नहीं आए, मतलब पहले टीम आ गया और प्रोसेस और टूल्स नहीं आए, तो जब भी आप टूल लाओगे ना तो बड़ा विरोध होता है. मतलब देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष होगा ऐसा लगेगा.
और जितना जल्दी टूल और प्रोसेस आ जाए और बाद में नया टीम मेंबर्स आए, तो क्या होगा कि समझो आप दो ही जन हो और आप दो जन ने अच्छी तरह से सिस्टम बना लिया, टूल्स यूज करना चालू कर दिया। नाउ व्हेन न्यू टीम मेंबर्स ज्वाइन योर कंपनी, सो दे विल फॉलो द प्रोसेस, तो आपके लिए ना बड़ा इजी हो जाता है। ये हम थोड़ी देर में बताएंगे आपको कि ये ना चलता कैसे है, तो इट विल बी लेट इट बी कंफ्यूजिंग, इट्स गुड, मजा आएगा। गुड वन सर। संघर्ष से ही सक्षम बनेंगे, यस। तो ये जो एक तो है ना कि प्रोसेस, आप में से बहुत से लोगों से जब हम लोग मिलते हैं, और हम लोग पिछले 12-13 महीने में बहुत ज्यादा भारत घूमे, ठीक है। अभी लास्ट वीक में ही मैं कलकत्ता भी था, एंड आवर टीम हैड विजिटेड, वी हैड इवेंट्स इन लॉट ऑफ प्लेसेस। तो एक चीज है ना समझ में आया है कि सबका एक सिंगल संघर्ष तो सबका है, राइट। कि अच्छे लोग मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो टिकते नहीं हैं, जो टिकते हैं वो काम नहीं करते हैं, ये सबका संघर्ष है, राइट। इसके अलावा और भी संघर्ष है कि वो जियो वाले ने कुछ और लॉन्च कर दिया, कोई और कुछ डायरेक्ट का कर रहा है, किसी ने नया ऐप लॉन्च किया है, कस्टमर्स कुछ भलता ही डिमांड कर रहे हैं। वो कस्टमर का और दुनिया का जो संघर्ष है वो तो है, टीम का भी संघर्ष है, ठीक है। सो वी नीड सम सिस्टम विच डज थ्री थिंग्स फॉर अस, राइट। एक कौन सा तीन चीज करे ऐसा सिस्टम चाहिए। तो एक ये चाहिए कि अपना प्रोसेस का है ना फ्लो मैनेज करा दे अपने लिए, राइट। मतलब कुछ रह तो नहीं गया, कुछ चूक तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया, वो पकड़ा जाए। और दूसरा ये कि ये प्रोसेस में जितना हो सके उतना ज्यादा ऑटोमेशन कर ले, राइट। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ना टीम को मैनेज करने में मदद करे कि आपका टीम क्या कर रहा है, राइट। टीम के साथ ना संघर्ष क्या होता है सर, क्यों ऐसा होता है कि अच्छे लोग टिकते नहीं है? क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि अच्छा कौन है। हमको मालूम नहीं पड़ता है हु इज द प्रिटेंडर एंड हु इज द परफॉर्मर। हम ये निकाल नहीं पाते हैं कि कौन काम कर रहा है और कौन काम का नाटक कर रहा है। जब हम ये निकाल पाएंगे, सीआरएम अपने को ट्रांसपेरेंटली ये बता देगा कि नाटक कौन कर रहा है और काम कौन कर रहा है, देन एवरीथिंग बिकम्स वेरी क्लियर, वेरी स्मूथ। तो ये सीआरएम का ना ये तीनों पर्पस एक साथ रहता है। अभी इसमें बहुत सारा चीज आएगा, टूल्स आएगा। तो एक काम करते हैं, मैं हमारे यहाँ से वैशाली पारेख है, उनको बोलता हूँ, शी विल शो यू द डेमो, स्लाइड वॉक अराउंड। अच्छा नहीं, ये डेमो नहीं होता, ये वॉक थ्रू होगा छोटा सा। डेमो क्या होता है मालूम है? जब भी हम, मतलब आप में जितने लोग हैं ना वो सबके साथ डेमो हमेशा इंडिविजुअली होगा। इस तरह का ग्रुप में डेमो नहीं होता है, क्योंकि डेमो का मतलब क्या होता है, समझो ऐसा रहा कि हम लोग अगर आशुतोष गुप्ता जी के साथ डेमो कर रहे हैं, तो पहले आशुतोष जी के साथ उनका बिजनेस समझा जाएगा, एक बकायदा मीटिंग होगा जिसमें हम उनके बारे में सारा चीज समझेंगे। फिर उनको जो चैलेंजेस है या उनका जो काम करने का तरीका है उसके हिसाब से सीआरएम दिखाया जाएगा, right? So his challenges, requirements, goals, when they meet the features of CRM, that's the demo. अभी जो होगा वो वॉक थ्रू होगा, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, सो ओवर टू वैशाली। अच्छा, आपको कुछ भी क्वेश्चन है ना अब तक में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चैट में चलेगा। Thank you. I'll begin with the mobile demonstration. I request Kanak sir to give me the permission to share from my mobile screen. Hello. Okay. Yes, repeat what you shared. I think at the end the voice was clear. लास्ट में जब बोल रही थी तब वॉइस ठीक आ रही थी। अभी तो हमारे राजीव दा आ गए हैं स्क्रीन पे। Any one of हेलो us using some CRM? Yeah. Yes, Limesh जी। सर, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, एकदम क्लियर। हाँ ठीक है, बस वही पूछना था। नहीं, वैशाली की भी शुरू में नहीं आ रही थी, लास्ट में वो जब ठीक है, बस। वैशाली इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस सेम पीसी, तो प्रॉब्लम नहीं है। Hello everyone. Uh,
कनक सर, आई हैव जॉइंड फ्रॉम माय मोबाइल एज वेल, तो उसमें आपको 2 वृशाली दिख रहे होंगे. कैन यू गिव शेयरिंग परमिशन टू दैट? Done. Okay. Thank you so much, sir. So, we have both mobile and web application. Now, why mobile application? क्योंकि हमारा majority of the work is done through mobile. We are most of the time on field meeting customers. So, we also want everything on hand कि क्या चल रहा है अभी बिजनेस में, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट आर माय टीम मेंबर्स अप टू टुडे. एट द एंड ऑफ द डे आई वांट टू सी हाउ मेनी टास्क्स आर कंप्लीटेड. सुबह उठ के अगर आई हैव आस्क्ड माय टीम टू डू 5 tasks, or if I was supposed to do personally 5 different tasks or 2 follow-ups, 3 meetings, I want to check at the end of the day how much is done, how much is still pending. So if you want to see that on the go, then we have a mobile application as well. So I'll just share the screen. अभी ऐसा भी होता है कि दिन में हमारे 5, 10, 15, 20 बार अलग अलग हम कॉल्स पे बात करते हैं. ठीक है, तो कॉल पे बात करते हैं तो ऐसा होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स विद डिफरेंट कस्टमर्स, क्लाइंट्स, प्रोस्पेक्ट्स. किसी ने रेफरल दिया है, किसी ने न्यू इन्वेस्टमेंट की बात की है, किसी ने रिडेम्पशन की बात की है, किसी ने अपने फ्रेंड के साथ आपको इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि उन्हें भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कराना है. किसी ने बताया है कि उनके यहाँ कोई मेजर उन्हें खर्चा करना है जिसकी वजह से उन्हें कुछ अमाउंट निकालना है. इट कुड बी वेरियस नंबर ऑफ थिंग्स. कोई ऑलरेडी आपके साथ म्यूचुअल फंड कर रहा था और अभी उनको टर्म इंश्योरेंस कराना है. इट कुड बी डिफरेंट थिंग्स. तो ऐसा होता है कि हमने कॉल पे शायद बहुत सारी बातें की है ना, उसमें से कुछ रह गया, कुछ छूट गया. आई हैड कमिटेड समथिंग बट बिकॉज मैंने कहीं पे उसे नोट डाउन नहीं किया था, सिस्टम में ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज नहीं किया था, तो वो मैं मुझसे छूट गया है, या फिर मुझे कहीं से रिमाइंडर नहीं आया तो फॉलो अप रह गया. मैंने क्लाइंट को बोला था नेक्स्ट वीक ट्यूसडे आई विल कनेक्ट विथ यू, बट आई हैड रिटर्न इट डाउन ऑन माई डायरी. नाउ डायरी इज नॉट गोइंग टू कम एंड रिमाइंड मी कि ट्यूसडे आप कस्टमर को कॉल कर लो. तो इस वजह से चीजें छूट जाती है. सो व्हाट इफ ऐसा होता कि कॉल पे मैंने जो भी बात की है वो मैं अपने सीआरएम को दूं. सीआरएम में मेरे पास एक एआई असिस्टेंट हो विच विल एनालाइज माई कॉल, tell me what discussions I have made, what discussions were done, what commitments were made from my end, and what are the next actions that are to be made from my side, and what are the next actions जो शायद मेरे client को करने हैं. What if it gave me all of this and along with that मुझे ये भी बता दे कि आपका कॉल हो गया ना, तो कॉल के बाद एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज आप आपके कस्टमर को भेज लो, या फिर ये ईमेल का MOM का ड्राफ्ट है जो आपके कॉल के ऊपर से बनाया गया है, ये आप आपके क्लाइंट के साथ शेयर कर दें. तो we have an AI. So we have an AI call assistant feature. जैसे कि ये मेरा एक कॉल रिकॉर्डिंग है, इसको मैं CRM में मैंने अपलोड किया. So we have an AI call assistant feature which will analyze this call, and as I mentioned, it will tell me exactly what were the commitments made, what were the key points discussed. Okay, जिनसे मेरी बात हो रही थी, अगर लेट्स से वो मेरा कोई ऑन गोइंग इंक्वायरी है या लीड है, तो मुझे ये भी बताएगा कि वॉज द कॉन्वर्जेशन पॉजिटिव, वॉज इट न्यूट्रल और वॉज इट नेगेटिव. इससे हमें ये भी आइडेंटिफाई होगा कि सामने वाले का जो इमोशंस है जो उन्होंने कॉल में शायद दर्शाए होंगे. सो व्हाट काइंड ऑफ वॉज इट हमारी तरफ पॉजिटिव था, न्यूट्रल था या नेगेटिव था. तो ऊपर मुझे दिख गया कि इट वॉज अ पॉजिटिव कॉल. कॉल का ड्यूरेशन मुझे यहाँ आ गया है, डेट आ गया, लैंग्वेज आ गया, अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस अगर आपने बात की है, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, उर्दू, एवरीथिंग कैन बी कैप्चर्ड. जो यहाँ पे रिजल्ट है, मतलब यहाँ पे जो टेक्स्ट है, समरी है, वो इंग्लिश में अभी बनता है. इसको भी हम अलग अलग लैंग्वेजेस में आगे जाके लाएंगे. अभी हमने ऐसा किया है कि आप किसी भी लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो AI इंटरप्रेट कर देगा कि आपने क्या बात किया है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एंगेजमेंट समरी आ गया कि मैं जिनसे बात कर रही थी उनका बजट कितना है, मैं जिनसे बात कर रही थी वो वहाँ पे डिसीजन मेकर है, या फिर अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रही हूँ तो वहाँ पे किस लेवल पे काम करता है, या फिर मैं किसी फैमिली हेड से बात कर रही हूँ, फैमिली मेंबर से बात कर रही हूँ, उनके सन से बात कर रही हूँ, उनके पेरेंट्स से बात कर रही हूँ. फिर आ जाता है कि मेरे की डिस्कशन पॉइंट्स क्या थे. तो एक तो डिस्कशन में हमने उनका करंट इनकम और एक्सपेंडिचर रिव्यू किया, फिर उनको बताया कि आपका फाइनेंशियल प्लान किस तरह से होना चाहिए,
दीज वर माई डिस्कशन पॉइंट्स। आई ऑल्सो आइडेंटिफाइड कि पेन पॉइंट्स कहाँ थे, कहाँ मुझे उनके फाइनेंशियल प्लानिंग में मुझे गैप्स लग रहे थे, वो आइडेंटिफाई करके मैंने उनसे शेयर किया। फिर हो सकता है कि डिस्कशन के टाइम आई ऑल्सो मेड सम कमिटमेंट्स दैट नेक्स्ट सेशन में वी विल डू योर प्रोफाइल एनालिसिस, आपके अभी करंट जो भी पोर्टफोलियो है उसका हम एनालिसिस करेंगे, या फिर आपको कौन से एग्जैक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। और मुझे ये भी मैंने यहाँ पे डाल दिया कि फॉलोअप सेशन हम करेंगे कब, तो नेक्स्ट ट्यूसडे हम फॉलोअप सेशन करेंगे। सो नीचे आई गेट माई एक्शन आइटम्स। तो एक्शन आइटम्स में वो मुझे दो चीजें बता रहा है, एक है कि फाइनेंशियल प्लानिंग डिटेल्ड एक सेशन लेना है, दूसरा उनका स्पेसिफिक मंथली एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है ना वो रिव्यू करना है। तो इसमें मेरे साइड से भी क्या एक्शन है और सामने वाले साइड से भी क्या एक्शन होना चाहिए वो मुझे यहाँ पे मिल गया। फिर नेक्स्ट स्टेप्स मुझे इमीडिएटली लेने हैं, शॉर्ट टर्म यानी कि एक हफ्ते में लेने हैं, या फॉलोअप जो मुझे लेटर ऑन करना है। इन दीज थ्री पार्ट्स ऑल्सो आई गेट माई नेक्स्ट एक्शन स्टेप्स। ठीक है, नाउ आई जस्ट सिलेक्ट की है मैंने कौन से क्लाइंट, मेरी कोई ऑनगोइंग लीड थी और मैंने उनसे बात किया है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, और जैसे मैं सेव टू सीआरएम करती हूँ तो ये समरी का जो भी मेरे की पॉइंट्स थे वो अपने आप सीआरएम में सेव हो जाएंगे। फिर ऐसा है कि मुझे कस्टमर को व्हाट्सएप मैसेज भी भेजना है वंस द कॉल इज डन, तो मैं यहाँ से सेंड व्हाट्सएप नाउ करती हूँ। मेरा जो मैसेज था वो उस नंबर में मैं डायरेक्टली अपने मोबाइल से ही सेंड कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे वो नंबर को वेरीफाई करेगा, एज सुन एज उसे नंबर मिलता है तो जो मैसेज का ड्राफ्ट है वो उनको शेयर भी हो जाएगा। सिमिलरली ईमेल का भी एक ड्राफ्ट बन जाएगा, एक एमओएम बन जाएगा कि दीज वर द की पॉइंट्स, जैसे कि ये आ गया तो यहाँ पे मैं ये शेयर कर देती हूँ। तो मेरी क्या क्या बात हुई थी वो यहाँ पे आ गया। ओके, सिमिलरली अगर मुझे ईमेल का भी करना है तो सीआरएम में मेरे क्लाइंट का ईमेल आईडी तो था ही पहले से, उसके साथ साथ इसका उसने सब्जेक्ट बना लिया, और मुझे क्या कंटेंट भेजना चाहिए वो भी यहाँ पे बना लिया पूरा, जो भी मेरे डिस्कशन के पॉइंट्स है। मैं ऐसे सेंड ईमेल कर सकती हूँ, तो ईमेल विल बी फायर्ड ऑन इट्स ओन। ओके, आई होप दिस एआई कॉल असिस्टेंट फीचर इज क्लियर। मैं इसको शेयरिंग ऑफ कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी वैशाली, सॉरी। या मैं एक बात ये पूछना चाह रहा था कि इस एआई एनालिसिस फीचर के लिए क्या हमें किसी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में बात करनी पड़ेगी अपने क्लाइंट से जब हम कॉल पे होंगे? नो सर, आप जो नॉर्मली बात करते हैं आपको वैसे ही करना है। आपका तो असिस्टेंट विल कैच ऑन कि आपने क्या क्या बात की है, और आप भले ही इट कुड बी अ 1 hour लॉन्ग डिस्कशन, असिस्टेंट विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कि कौन से की पॉइंट्स थे जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ था, और वो समराइज कर देगा। mean to say we have to talk generally as we talk to our client, and यस यस, AI will analyze which type of call this was and what they are was asking. एग्जैक्टली exactly. जैसे कि आपने देखा होगा ऊपर एक ना समरी जैसा आता, समरी में लिखा था कि ये कौन से स्टेज पे है, तो वहां पे उसने आइडेंटिफाई कर दिया था दिस इज अ प्रोस्पेक्टिंग स्टेज, क्योंकि ये ऐसा कॉल था जो मैंने कस्टमर के साथ फर्स्ट टाइम किया था। तो उसमें ऐसा होता है ना कि मैं उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछती हूँ कि भाई क्या काम करते हो आप, आपका अभी जो सेविंग्स है वो किस हिसाब से है, आपका एक्सपेंस कैसा रहता है। तो मैंने बहुत ही बेसिक अलग अलग कौन से जगह आपके आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे, इट वाज अ वेरी बेसिक डिस्कशन, सो इट आइडेंटिफाइड दैट दिस इज एट अ प्रोस्पेक्टिंग स्टेज। अगर ऐसा होता कि मैं उनसे ऑनबोर्डिंग की बातें कर रही हूँ, मैं उनसे बोल रही हूँ कि मुझे ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास से चाहिए होंगे, हम ये वाली स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले हैं, आपका 1 महीने बाद हम यहाँ पे करेंगे, अगर मैं ये बातें कर रही होती तो इट वुड आइडेंटिफाई दैट दिस इज नॉट एट प्रोस्पेक्टिंग लेवल, दिस इज एट ऑनबोर्डिंग लेवल, सो इट इज 1 stage अहेड ऑफ इट। तो मेरा डिस्कशन चाहे कस्टमर के साथ जो भी हो, द एआई विल एनालाइज दैट एट व्हाट स्टेज इट इज, what were the key points discussed, what are to be the next actions जो उसको कॉल के ऊपर से आइडेंटिफाई होंगे। ग्रेट। वन मोर थिंग, क्या ये इस एआई एनालिसिस को हम लोग जो इन पर्सन मीटिंग होती है उसमें एज रिकॉर्डर के रूप में यूज कर सकते हैं ताकि वो वहां से मीटिंग नोट्स निकाल सके? आपके फोन में तो रिकॉर्डर होगा, या आप वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड देन इसमें अपलोड भी कर सकते हैं, दैट इज यस, पॉसिबल। मतलब इन फिजिकल मीटिंग में हम इसको रिकॉर्ड करके सामने अपलोड करेंगे तो वहां से मीटिंग नोट्स निकाल यस यस। देंगे। ओके, थैंक यू। ओके, मैं एक सेकेंड, जो हमारा वेब एप्लीकेशन है मैं वो भी शेयर करती हूँ एक बार। सो दिस वाज हाउ जो हमारा मोबाइल का
AI फीचर है दैट वर्क्स नाउ। जो हमारा मेन सी है, मैं वो आपसे एक बार शेयर करती हूँ। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। सो ये आपके हर एक यूजर को, हर एक टीम मेंबर को एक ऐसा लॉगिन मिलेगा। Everybody will receive their unique login user ID and password। और आपका जो लोगो होगा वो होगा कंपनी का, जो यूआरएल है वो आपके कंपनी के नाम से होगा। एंड देन द फर्स्ट पेज दैट ओपन्स टू इज ओपीआर डैशबोर्ड, जिसमें आता है ओपन पीरियोडिक और रिजल्ट। तो इसके ऊपर से मैं सारा एनालिसिस कर सकती हूँ कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अभी क्या काम चल रहा है, कितना बाकी है और कितना कंप्लीट होने वाला है। जैसे कि ओपन सेक्शन है, वहां मुझे दिखता है कि मेरे अभी पाइपलाइन में क्या क्या बाकी है, मेरे कितने टास्क बाकी है करना, कितने लीड्स पे के ऊपर फॉलोअप करना बाकी है, कितनी लीड्स कंप्लीट होना बाकी है, कितनी मीटिंग्स ऐसी है जो शेड्यूल्ड है या प्लान्ड है पर करना बाकी है। ओके। फिर आ जाता है कि कॉल्स दिख रहा है, तो मुझे वहां से दिखेगा कि आज के दिन में कितने कॉल्स हुए हैं मेरे और मेरे टीम के। दिख रहा है ओवर ड्यू एंड ड्यू टुडे। तो इफ आई डू ड्यू टुडे, तो ड्यू टुडे मुझे दिखा है कि आज के दिन में मुझे क्या क्या काम करना है। अगर किसी क्लाइंट ने मुझे बोला था कि 26 मार्च को मुझे कनेक्ट करना, और मैंने वहां पे फॉलो अप डेट डाला था फॉर 26 मार्च, तो मुझे यहाँ पे आज के फॉलोअप में दिखेगा। सिमिलरली अगर कोई ऐसे टास्क है, टास्क एज इन की कहीं कहीं पे किसी का बैंक चेंज करना है, नॉमिनी चेंज करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजने हैं, देयर कुड बी डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क, किसी का रिडेम्पशन करना है या फिर कोई ट्रांजैक्शन आज कंप्लीट करना है। सो फॉर ऑल दीज टास्क हम यहाँ पे एक टास्क बनाएंगे जो शायद आपके टीम मेंबर को असाइन होगा या आपके सर्विस आरएम को असाइन होगा। एंड वहां पे आई कैन पुट अ ड्यू डेट कि मुझे कब ये टास्क कंप्लीट होके चाहिए। तो मुझे यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है नीचे ऑन सेकेंड लेवल कि ये टास्क किसको असाइन है। तो आज के दिन में इतना काम मेरे टीम मेंबर्स करने वाले हैं, तो ये मुझे मेरे डैशबोर्ड से दिख जाएगा। फिर यहाँ पे टास्क है जो मुझे कुछ दिख रहा है कि इतने ओपन टास्क है, तो मुझे उसका कैटेगरी भी दिखेगा कि दीज आर फाइनेंशियल टास्क। एक तो कौन से स्टेटस पे है वो मुझे दिखेगा। फिर ये दिखेगा कि आर दीज फाइनेंशियल टास्क और नॉन फाइनेंशियल टास्क। फाइनेंशियल में आ जाता है कि ये एसटीपी है, एसडब्ल्यूपी है, या रिडेम्पशन है, या एसआईपी स्टॉप करने के लिए कोई टास्क है। जितने भी आपके ट्रांजैक्शनल या फाइनेंस रिलेटेड टास्क होंगे, दोज आर कॉल्ड फाइनेंशियल टास्क। नॉन फाइनेंशियल में आ जाता है आपका बैंक चेंज करना है, नॉमिनी का नेम कहीं पे चेंज करना है, या फिर पैन की डिटेल्स कहीं पे चेंज करनी है, एड्रेस कहीं पे चेंज करना है। दीज बेसिक जो नॉन ट्रांजैक्शनल आपके सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, वो सब कुछ आपका नॉन फाइनेंशियल में आ जाएगा। तो मैं यहाँ से वो भी आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। फिर मेरे कौन से टीम मेंबर को कितने टास्क असाइन है वो भी मैं यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। Okay, going back to the dashboard. So this is my open dashboard. Open dashboard will always tell me what is still in the pipeline or the things that are not yet completed. जो अभी तक फिनिश नहीं की गई है वो सब कुछ ओपन आता है। ओके, सिंपल, जो ओपन का मीनिंग होता है भाई। पीरियोडिक में आ जाता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड में यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लास्ट 7 डेज दिया है। आई कैन ऑल्सो आस्क कि मुझे लास्ट 30 डेज में क्या क्या हुआ है वो देखना है, या लास्ट 1 मंथ में कितना कितना हुआ है वो देखना है, एक क्वार्टर में कितना हुआ है। जैसे कि अभी मार्च एंड आ रहा है, तो मुझे देखना है कि इस क्वार्टर में मेरी कितनी न्यू लीड बनी है, कितने न्यू क्लाइंट्स आए हैं, कितने मेरे टीम मेंबर्स ने कितने कॉल्स किए, कितनी मीटिंग्स किए। तो ये सब मुझे दिख गया। तो इस क्वार्टर में इतने टास्क आ रहे हैं, इतने कॉल्स हुए, इतने न्यू क्लाइंट्स बने, इतनी न्यू फैमिलीज बनी, इतने लीड्स आए, इतनी मीटिंग्स आई। ओके। सिमिलरली रिजल्ट में मुझे दिखेगा कि लास्ट 30 डेज में, यहाँ पे आई कैन चेंज द पीरियड इफ आई वांट टू सी कि लास्ट एक मंथ में या लास्ट 30 डेज में, लास्ट क्वार्टर में कितने टास्क कंप्लीट हुए। रिजल्ट विल ऑलवेज टेल मी थिंग्स दैट आर डन और दैट आर फिनिश्ड, दैट आर कंप्लीटेड। जैसे कि लीड्स है तो 31 लीड्स आई, उसमें से 30 गॉट कन्वर्टेड एंड 1 गॉट लॉस्ट। अलॉन्ग विद द अमाउंट इट विल शो मी व्हाट वाज द वन अमाउंट, व्हाट वाज द लॉस्ट अमाउंट। ओके। तो अगर 40 मीटिंग शेड्यूल हुई तो कितनी कंप्लीट हुई है, तो मुझे कितनी शेड्यूल हुई उसके अगेंस्ट कितनी कंप्लीट हुई, ये नंबर्स भी यहाँ से मिलेंगे।
So this is my OPR dashboard, open periodic and result. फिर एक टर्म आ जाता है कि लेट्स से आई हैव अ क्लाइंट, उनका नाम है, यहाँ से सिंपली सर्च कर सकती हूँ, मुझे आ गया क्लाइंट का नेम। मैं क्लाइंट पे क्लिक करती हूँ तो मुझे उनके रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होगी वो आ जाएगी। एक तो ये आ गया कि उनका बेसिक डिटेल्स जैसे कि फैमिली का कोड, क्लाइंट कोड, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, उनका आरएम कौन है, मतलब कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन से उनका केस कौन हैंडल करता है। फिर आ गया कि उनका टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे साथ कितना है, ईएम कितना है, फिर पोटेंशियल अमाउंट कितना है, रिमेनिंग अमाउंट कितना है। हम अलग अलग चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं कि अगर इफ आई वांट टू बाइफरकेट कि उनके टोटल ईएम जो मैनेज करती हूँ मैं, उसमें क्या बाइफिकेशन है, हाउ मच इज इन म्यूचुअल फंड, हाउ मच इज फॉर इंश्योरेंस, हाउ मच इज स्टॉक्स, हाउ मच इज बॉन्ड्स, हाउ मच इज फिक्स डिपॉजिट। इसको मुझे सेग्रीगेटेड वे में देखना है तो वो भी मैं यहाँ से कर सकती हूँ। फिर बेसिक केवाईसी डिटेल्स जैसे कि उनकी एज, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, ऑल ऑफ दिस कैन बी sorted। ये सब आपका बेसिक जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आ रहा है। फिर आता है इनका इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर मैं 10 अलग अलग सर्विसेज देती हूँ तो मेरे क्लाइंट ने मेरे पास से कितनी सर्विस ली है, ओके, और कितना स्कोप है कि मैं उनको आगे कौन से दूसरे सर्विसेज के लिए पिच कर सकती हूँ। तो जो हमें क्रॉस सेलिंग या अपसेलिंग का प्रोसेस करना होता है वो भी सीआरएम से फैसिलिटेट हो सकता है। ऑल्सो लेटर स्टेज पे आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट रिपोर्ट्स जिसमें मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि ये 50 मेरे म्यूचुअल फंड के ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मेरे से इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, और ये शायद मैं इनको पिच कर सकती हूँ फॉर इंश्योरेंस। या फिर ये मेरे 100 ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मेरे पास से स्टॉक्स या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कराता है पर म्यूचुअल फंड्स में नहीं कराते या बॉन्ड्स में नहीं कराता। तो इस तरह से मैं इसको सेग्रीगेट करके रिपोर्ट्स निकाल सकती हूँ कि वेर आई कैन सी अपॉर्चुनिटीज टू क्रॉस सेल एंड अपसेल। ओके, आप दिस इस डेटा को कैसे अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे कि किस प्रोडक्ट के लिए कौन सा इन्वेस्टर है हमारा, किसका नहीं? सर ये इनिशियली फर्स्ट लेवल पे मैनुअल एक्सरसाइज होगी ताकि आप वहां पे सिलेक्ट कर सके कौन से कस्टमर ने आपसे कौन सी सर्विसेज ली है। ओके, आफ्टर दैट, फर्स्ट आफ्टर, लेवल के बाद? जो रिपोर्ट्स जनरेट करने हैं वो सिस्टम में हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ठीक। यस। फिर आ जाता है कि हमें हमारे क्लाइंट्स के साथ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मीटिंग्स करनी होती है, ओके, जिसे हम पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स या रीबैलेंसिंग के लिए मीटिंग्स कहते हैं, या कुछ लोग क्लाइंट कनेक्ट कहते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के हमें मीटिंग्स करने होते हैं और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम उनको कंटिन्यूसली मिलना चाहते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हम वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं या उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि ना सिस्टम है, ना कहीं पे नोट किया है, ना कोई रिमाइंडर्स है। और ऐसा भी होता है कि RM इज नॉट अवेलेबल, इधर यू आर नॉट अवेलेबल, या टीम मेंबर अवेलेबल नहीं है, क्लाइंट ही अवेलेबल नहीं है इसलिए मीटिंग नहीं हुई। अलग अलग रीजंस की वजह से वो छूट जाता है, रह जाता है, मिस हो जाता है। सो वी हैव डिवाइस्ड अ वे हियर जहाँ पे यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट कि मुझे कौन सी फ्रीक्वेंसी पे उनसे मिलना है, मंथली मिलना है, क्वार्टरली मिलना है या ईयरली मिलना है, ठीक है, और कौन सी डेट पे मिलना है। तो उसके हिसाब से जो मेरी फर्स्ट मीटिंग की डेट होगी उसके हिसाब से मुझे नेक्स्ट मीटिंग कब करनी है और मेरी लास्ट मीटिंग कब हुई थी वो ऑटोमेटिकली उसमें जनरेट होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से कि मुझे अपने क्लाइंट से, मेरे क्लाइंट का नाम है लिमेश पारेख और मुझे उनसे मिलना है मंथली, और एवरी मंथ मुझे 3 तारीख को उनसे मिलना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मीटिंग शेड्यूल जो मेरी फ्रीक्वेंसी है उसमें डाल दूंगी मंथली, मेरा फर्स्ट मीटिंग डेट में डाल दूंगी कि 3 मार्च को मैं मिल रही हूँ। फिर 3 मार्च की मीटिंग मेरी जैसे ही क्लोज होती है वो 3 अप्रैल की मेरी मीटिंग अपने आप सिस्टम जनरेट करके मुझे रिमाइंडर दे देगा, ठीक है। तो वो 3 अप्रैल के एक दिन पहले मुझे भी रिमाइंडर देगा और अगर मैं चाहूँ तो मैं क्लाइंट को भी रिमाइंडर ऑटोमेटिकली भेज सकती हूँ। सो इवन माई क्लाइंट नोज कि मेरी इनके साथ मीटिंग होने वाली है या कॉल आएगा या मुझे इनके साथ मिलना है आज, ओके। अगर ऐसा होता है कि फॉर सम रीजन 3 अप्रैल आई एम नॉट एबल टू मीट माई क्लाइंट, तो उस केस में क्या होगा कि मैंने मीटिंग को रीशेड्यूल कर दिया, क्या मीट देम ऑन 5 अप्रैल इंस्टेड ऑफ 3 अप्रैल, आई विल मीट देम ऑन 5 अप्रैल। तो उसके बाद वाले महीने में जो मेरी मई महीने में मीटिंग बनने वाली है वो अपना 5 मई की बनेगी।
so that I can meet them on the perfect gap of 1 month, जो मुझे उनका रिव्यू करना है उसके लिए। ठीक है, आई होप ये प्रोसेस क्लियर है सबको। इन केस देयर इज एनी डाउट्स, आप कमेंट, आप ये चैट सेक्शन में एंटर कर सकते हो। फिर यहाँ पे आ गया हिस्ट्री। हिस्ट्री पैनल में मुझे दिखता है कि मेरी इस क्लाइंट के साथ कितनी मीटिंग्स हुई है, और ये ओवरऑल दिखता है। इसमें कोई टाइम स्टैम्प नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ 1 साल का डेटा दिखेगा या सिर्फ 5 साल 7 साल का दिखेगा। वी हैव क्लाइंट्स विद whom वी हैव बीन कनेक्टेड सिंस लास्ट 15 years, तो मुझे 15 years का भी डेटा इसमें दिखता है। तो मुझे सारी पास्ट की हिस्टोरिक मीटिंग्स भी दिखेगी। ओके, शेड्यूल्ड मीटिंग्स भी दिखेगी, ऐसी मीटिंग्स भी दिखेगी जो मैंने प्लान करके अभी अभी अपने आरएम को असाइन की है। ऐसी मीटिंग्स भी दिखेगी जो आरएम ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है। कॉल्स में आएगा कि हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे मैंने अभी बताया था डेमोन्स्ट्रेशन में, तो मोबाइल एप्लीकेशन में जो भी मैं नॉर्मल अपने फोन से कॉल्स करती हूँ, वो कॉल्स को मैं उसमें लॉग कर सकती हूँ। रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लॉग कर सकते हैं। लॉक करने से क्या होगा कि मुझे आइडेंटिफाई होगा कि लास्ट मेरी कौन से कस्टमर के साथ कब बात हुई थी, और कौन से आरएम ने बात की थी, किस बारे में बात की थी, और कितनी देर के लिए बात की थी। ये जो हमें ऑडिट पर्पसेस के लिए एक रिकॉर्ड रखना होता है कि मेरे जो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन हो रहे हैं वो कौन से मीडियम से हो रहे हैं और कितने फ्रीक्वेंसी पे हो रहे हैं, उसमें भी काफी काम आएगा। फिर जो थर्ड हमारा मीडियम है कम्युनिकेशन का, जो सबसे प्रोमिनेंट है, विच इज व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप से अगर आप सीआरएम के थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं, या फिर सीआरएम को आप एपीआई से कनेक्ट करके फिर व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं, तो वो भी सीआरएम में लॉग होगा ना। इसका फायदा आता है व्हेन आई सी लास्ट इंटरेक्शन। तो लास्ट इंटरेक्शन में मुझे यहाँ पे पता चलता है कि मैंने ये मेरे क्लाइंट के साथ कब कम्युनिकेट किया था। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले इनको एक मीटिंग का व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, मैंने फोन से जब डेमोन्स्ट्रेशन किया था। तो यहाँ पे इट विल शो मी दैट लास्ट कम्युनिकेशन मीडियम वाज व्हाट्सएप, कम्युनिकेटेड बाय, तो आरएम का नाम आ गया और कम्युनिकेशन का डेट आ गया, 8 minutes अगो इट वाज डन। ओके, तो यहाँ से आई कैन कैप्चर कि अगर ऐसा है कि आई हैव अ क्लाइंट जिनके साथ पिछले शायद 2 महीने से कुछ कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, इधर कॉल्स व्हाट्सएप और मैसेज, या फिर 6 महीने से नहीं हुआ है, तो ये सब कुछ मैं यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। Okay, so this is how the last interaction feature works. Based on this also I can generate reports if I want to identify कि मेरे कितने ऐसे clients हैं जिनसे शायद लास्ट 1 क्वार्टर से या लास्ट 6 महीने से मैंने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है, बीट व्हाट्सएप, बीट मार्केटिंग मैसेजेस, बीट ईमेल्स, बीट कॉल्स और मीटिंग्स, कुछ भी नहीं गया है। तो उस केस में वी विल हैव अ रिपोर्ट जहाँ पे आई कैन आइडेंटिफाई सच कस्टमर्स। ओके, फिर आ जाता है कि इस क्लाइंट के रिलेटेड मैंने जो भी अटैचमेंट, शायद कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ पेमेंट रिसीट्स, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे अटैच करके रखना है, या फिर उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है which I want to store with me so that I can use them for future purposes, future reference के लिए। तो यहाँ पे with consent you can store them। फिर आता है पोर्टफोलियो डिटेल्स। सो इफ यू कनेक्ट द सीआरएम सॉफ्टवेयर, आपका जो भी ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टवेल हो गया, रेडविजन हो गया, एडवाइजर कोच हो गया, M2M विजया, मिडास एक्स हो गया, MF बॉक्स जो है वो हो गया, तो इन सब के साथ अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं या फिर आप वहां से डेटा यहाँ पे पुल करते हैं, तो ये पोर्टफोलियो डिटेल्स विल ब्रिंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम देयर। सो विद एवरी क्लाइंट आई विल बी एबल टू सी कि कितने प्रोडक्ट्स या स्कीम में मैंने इनका इन्वेस्टमेंट करके रखा है, अलॉन्ग विद फोलियो नंबर, प्रोसेसिंग डेट, प्रीमियम कितना है, ऑल द डिटेल्स जो वहां पे आपको दिखती है वो हम यहाँ पे ला सकते हैं। नाउ बेनिफिट ऑफ दिस इज कि अगर कोई SIP डेट है, पेमेंट डेट है, और मुझे चाहिए कि आई वांट टू सेंड माय क्लाइंट रेगुलर इंटीमेशन अबाउट या रिमाइंडर्स फॉर SIP डेट्स, कि जब पेमेंट होने वाला है उसके 2 दिन पहले मैं उनको बता के रखूँ, एंड आई वांट टू टेल देम थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल, तो वो यहाँ से मैं ट्रिगर्स एनेबल कर सकती हूँ। ठीक है, फिर आ जाता है कि अगर दिस क्लाइंट हैज रेफर्ड मी मोर क्लाइंट्स, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा कि इनके रेफरेंस के थ्रू आपके पास और कितने क्लाइंट्स आए हैं।
तो यहाँ पे सूर्यन फैमिली दिख रहा है जो रेफरल में आ रहा है, यानी कि लिमेश पारेख हैज रेफर्ड दीज क्लाइंट्स टू मी, दैट्स व्हाई आई कैन सी देम हियर। ठीक है, तो जो पूरा रेफरल मैनेजमेंट हमें करना होता है, जहाँ पे आई वांट टू नो कि मेरे एक क्लाइंट ने मुझे और कितने क्लाइंट्स दिए हैं, उनका एग्रीगेटेड एयूएम कितना है, या फिर कौन से मेरे हाई ट्रस्ट ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझे रेगुलरली रेफरल्स देते ही रहते हैं। ओके, रिस्क प्रोफाइल पे हम बात करते हैं। फिर आ जाता है कि इस क्लाइंट के रिलेटेड कितने लीड्स हैं, यानी कि उन्होंने कितनी बार न्यू इंक्वायरीज कराई, न्यू इंक्वायरी करी है, या फिर न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने हमसे डिमांड किया है। और जब भी किया है तो उसमें से कितनी कन्वर्ट हुई है और कितनी लॉस्ट हुई है। हो सकता है उन्होंने काफी बार न्यू इंक्वायरी या न्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास आए हो, बट नॉट एवरी टाइम इट वाज सक्सेसफुल। समटाइम्स वो प्रोसेस हमने कंप्लीट किया था या कभी हुआ था कि वो कन्वर्ट नहीं हुआ या लॉस्ट हो गया। फिर आता है कि कितने टास्क हुए हैं। टास्क में जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे दो टाइप के टास्क होते हैं। एक हो जाता है कि आपके जो ट्रांजैक्शनल फाइनेंशियल टास्क है, एक आता है जो आपके नॉन ट्रांजैक्शनल और नॉन फाइनेंशियल टास्क। तो टास्क, कौन से टास्क आए थे, उसका अभी स्टेटस क्या है, वो कंप्लीट हो गया या बाकी है, कौन सा सर्विस आ रहा है मैं उस पर काम कर रहा था, कब तक खत्म होना चाहिए था, फिर उसकी अगर हमने कोई प्रायोरिटी सेट की है तो वो क्या है। ओके, टास्क की कैटेगरी यानी कि किस टाइप का टास्क था वो मुझे दिखेगा। टास्क का सोर्स व्हाट्सएप कॉल या वॉकिंग था, कब हमने ये टास्क क्रिएट किया था और कब तक खत्म होना चाहिए। ऑल ऑफ दिस डिटेल्स आई कैन सी डायरेक्टली, वो क्लाइंट के अंडर ही मुझे दिख जाता है। ओके, फिर है इवेंट मेंबर्स। तो दिस इज सेपरेट थिंग। जैसे कि आप आईपी इवेंट्स करते होंगे, ऑनलाइन होते हैं ऑफलाइन होते हैं, आप अलग अलग शायद टॉपिक्स पे डिफरेंट स्पीकर्स को बुला के आईपी इवेंट्स करते होंगे। तो उसका भी यू वांट टू स्टोर सम डेटा कि कौन से मेरे क्लाइंट्स कौन से टाइप के आईपीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है, कैसे टॉपिक्स है जो शायद अभी ज्यादा ट्रेंडिंग है, या दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दोज टॉपिक्स, दे आर मोर एंगेज्ड विद सच टॉपिक्स। तो आप उस पर ज्यादा ध्यान देके उस टाइप के आईपी इवेंट ज्यादा करना चाहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम ज्यादा करना चाहते हैं, तो यू कैन स्टोर दैट इन्फॉर्मेशन कि मेरा कौन सा क्लाइंट कौन से आईपी इवेंट में कितनी बार आया है। ओके, सो दिस वाज अबाउट जो मेरा एक ही क्लाइंट का मुझे सारा इन्फॉर्मेशन एक ही पेज पे देखना है, वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो जितना भी मैंने अभी स्टार्ट टू एंड ये क्लाइंट के बारे में जितना भी आज तक कम्युनिकेशन मेरा हुआ है, जिस टाइप के ट्रांजैक्शन हुए हैं, कोई भी टास्क लीड एवरीथिंग स्टार्ट टू एंड 360 डिग्री व्यू आई कैन गेट फ्रॉम वन सिंगल पेज। ठीक है, अभी ऐसा हो जाता है कि इनकी कोई लीड है। okay, या फिर इन्होंने कोई न्यू इंक्वायरी हमसे करी है, न्यू इन्वेस्टमेंट इनको स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ से एक न्यू लीड क्रिएट कर देती हूँ। इफ आई क्रिएट, तो एक क्रिएट न्यू लीड का एक फॉर्म खुल जाएगा। वहाँ पे जो बेसिक क्लाइंट रिलेटेड डिटेल्स हमारे पास है पहले से, वो ऑटो फेच होके आ जाएंगी। लीड का नेम आ गया, लीड का टाइप। तो ये एग्जिस्टिंग बिजनेस और न्यू बिजनेस क्या है। तो कई बार मुझे ये जानना होता है कि इस साल में जितना भी मेरे पास बिजनेस आया उसमें से कितना ऐसा था जो न्यू कस्टमर से, और कितना ऐसा था जो पहले से मेरे कस्टमर है और बस मेरे पास कुछ और प्रोडक्ट के लिए या टॉपअप के लिए आए हैं। ओके, तो उस केस में अगर मुझे जानना है कि किस पर्पज से वो मेरे पास आए थे, वो मैं यहाँ से मैनेज कर सकती हूँ। ठीक है, फिर आ जाता है लीड स्टेटस। तो एक होता है न्यू कि अभी अभी ये लीड आई है हमारे पास। फिर होता है कि इन प्रोसेस, यानी कि हमने इनसे बात फॉलो अप करना स्टार्ट किया है, उनके बारे में जानने की कोशिश की है कि अलग अलग चीजें उनको क्या इन्वेस्ट कराना है, उनका किस चीज में इंटरेस्ट है। फिर आ जाता है ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस, हमने स्टार्ट कर दिया। तो ऑनबोर्डिंग में भी बहुत सारी अलग अलग चीजें हमें करनी होती है, जैसे कि आगे आगे हमें फॉर्म भेजना है, फॉर्म रिसीव होगा, डॉक्यूमेंट्स कुछ बनाने हैं, केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट करना है, रिस्क प्रोफाइलिंग करनी है, फिर मैंडेट फिल करना है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर टू बी डन स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। और हमें चेक करना है कि अभी कौन से स्टेज पे वो हमारी लीड अटकी हुई है या कहाँ पे अभी तक रुकी हुई है। तो आई कैन आइडेंटिफाई इट फ्रॉम हियर। तो अभी लगता है कि रिस्क प्रोफाइलिंग असेसमेंट मुझे इनका करना है। ओके, और इनका सर्विस आ रहा है तो हम लेटर स्टेज पे जब इनको असाइन करेंगे तो मैं यहाँ से ऐड कर सकती हूँ कि इनका सर्विस आ रहा है कौन है जो ये सारा प्रोसेस करे।
फिर आ जाता है तो सर्विस आरएम में मेरे जितने भी टीम मेंबर्स होंगे मुझे यहाँ से उनका लिस्ट मिल जाएगा। आई कैन सिलेक्ट कि कौन से पर्सन को मुझे असाइन करना है, जैसे कि लेट्स से कि मैं मेबल को ये टास्क असाइन कर रही हूँ। तो इस लीड के रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस करने हैं, सर्विसेज कंप्लीट करनी है ऑनबोर्डिंग की, मेबल विल बी हैंडलिंग दैट। फिर आ जाता है प्रोडक्ट। तो इन्होंने कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्ट बताया है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ। तो ये आ गया प्रोडक्ट, मैंने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया तो इट विल आस्क मी कि व्हाट इज द सब कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट, एसआईपी है, लमसम है, एसआईएफ है। अगर मैं इंश्योरेंस सिलेक्ट करती हूँ तो इंश्योरेंस में भी इट विल गिव मी ऑप्शंस कि टर्म है, हेल्थ है या जनरल इंश्योरेंस है, व्हाट काइंड ऑफ इंश्योरेंस इट इज। ओके, वी कैन ऑल्सो ऐड द लिस्ट, मतलब इसके अलावा भी अगर आप कोई और सर्विसेज देते हैं, बॉन्ड्स है, स्टॉक्स हो गया, इक्विटी हो गया, तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं वो। और अभी के लिए लेट्स से चूज म्यूचुअल फंड एंड फॉर सब कैटेगरी आई एम चूजिंग एसआईपी। फॉलोअप डेट मैंने कि अगर मैंने आज इनसे बात की और हमने ये डिसाइड किया कि हम अभी मंडे को मिलेंगे वापस टू डिस्कस नेक्स्ट, जो भी हमें डिस्कशन करना है वो हम मंडे को करेंगे 30 तारीख को। तो मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर दूंगी और उसके साथ मुझे उनको कितने बजे कॉल करना है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगी। कैसे कि मुझे उनको 10 बजे कॉल करनी है, तो मैंने एंटर कर दिया। ये अगर क्लाइंट रिलेटेड हमें कुछ और डिटेल्स डालनी है, लीड रिलेटेड कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, तो वो मैं ऐड कर सकती हूँ। दूसरा आता है एयूएम पोटेंशियल। एयूएम पोटेंशियल मैंने कि अभी भले वो हमारे पास शायद बहुत छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करा रहे हो, पर हमें लग रहा है कि उनका आगे जाके पोटेंशियल शायद ज्यादा हो सकता है, और मैं फ्लैग करके पहले से ही रखना चाहती हूँ कि ओके आई फील लाइक दिस क्लाइंट हैज लॉट मोर पोटेंशियल, तो इनका शायद इन्वेस्टमेंट आगे जाके बढ़ेगा। तो मैं वो यहाँ से पहले से फ्लैग करके रख सकती हूँ। हो सकता है कि अभी वो हमारे पास जो एसआईपी कर रहा है करा रहे हैं दैट इज ओनली 8,000 मंथली। फिर आ जाता है कि हमने जो उनसे बात की उससे व्हाट डिड वी आइडेंटिफाई, उनकी करंट दूसरी क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं। हो सकता है उनके पास रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स हो, बॉन्ड में हो, उनके एफडीज में हो, तो मैं ऐसे सिलेक्ट करके रख सकती हूँ। फिर आता है रेफर्ड बाय, एज आई मेंशन कि रेफरल मैनेज करना इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस फॉर अस टू आइडेंटिफाई हु आर आवर हाई ट्रस्ट क्लाइंट्स। ओके, तो रेफर्ड बाय में समझो मैंने डाल दिया कि इनका रेफरेंस मुझे मिला था, तो यहाँ पे मेरी पूरी क्लाइंट की लिस्ट आ जाएगी। तो मैं यहाँ से सर्च भी कर सकती हूँ। तो ये शायद मैंने सर्च किया, तो ये येशा मेहता ने रेफर किया था, तो मैंने ऐड कर दी। फिर लीड सोर्स, क्योंकि हमने ये एग्जिस्टिंग क्लाइंट से लीड क्रिएट की थी, तो लीड सोर्स इज एग्जिस्टिंग क्लाइंट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वेबसाइट हमारी है, वेबसाइट पे एक फॉर्म है कॉन्टेक्टर्स, वो फिल करके कोई आया है, तो हम वेबसाइट और सीआरएम को लिंक कर देंगे, वो फॉर्म अपने आप सीआरएम में आ जाएगा। या फिर ऐसा हो रहा है कि मैं सोशल मीडिया पे एड्स करती हूँ, मैं फेसबुक एड्स, मेटा एड्स, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, आई एम रनिंग सम एड्स, उसके ऊपर मैंने एक फॉर्म रखा है इंटरेस्टेड, तो क्लिक करो और फॉर्म भरो, एंड आई वांट कि वो डिटेल्स भी कैप्चर हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली सीआरएम में आ जाएंगी। वो ऑटोमेटिकली आपके सेल्स आरएम को असाइन भी हो जाएगी। अगर आपको ऐसा चाहिए कि म्यूचुअल फंड की लीड वैशाली को असाइन हो, इंश्योरेंस की लीड निर्भय को असाइन हो, और अगर इक्विटी रिलेटेड कुछ भी आ रहा है तो वो सब कुछ सिमरन को असाइन हो, तो ऐसे अलग अलग बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट कैटेगरी भी इट विल गेट असाइन टू द आरएम ऑटोमेटिकली। ठीक है। फिर ऐसा हो सकता है कि मुझे रेफरल के थ्रू आ रही है, या फिर कॉल्स पे आ रही है, या फिर मैंने कहीं पे ये एड्स रन की थी उसके थ्रू आ रही है, एंड आई वांट टू नो कि लेटर ऑन मुझे एक एनालिसिस चाहिए कि मेरा कौन से लीड सोर्स से सबसे ज्यादा आती है। जैसे कि हो सकता है कि मेरा 80% ऑफ द बिजनेस रेफरल के थ्रू आता है, बाकी जो 10% है वो शायद मेरे एड्स से आता है, और उसके बाद जो 10% है वो शायद डायरेक्ट आता है। तो ये अलग अलग चीजें मुझे आइडेंटिफाई होगी कौन से सोर्स से मेरे पास ज्यादा लीड्स आती है। ठीक है? तो अभी लेट्स से कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है रिस्क प्रोफाइलिंग असेसमेंट, और मैं इसको सेव कर देती हूँ। तो जब मैं मुझे ये असेसमेंट करना है, तो इस केस में हमने एक फीचर डेवलप किया है कि रिस्क प्रोफाइलर हम व्हाट्सएप के थ्रू ही कर सकते हैं पूरा, स्टार्ट टू एंड।
तो इसमें क्या होता है कि व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू हमने इंटीग्रेशन किया है, जिसमें जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ कि मुझे क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल असेसमेंट करना है, तो मेरे क्लाइंट के नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ पे मेंशन है, उस पे उनको मैसेज चला जाएगा कि आपका रिस्क प्रोफाइलिंग हमें इनिशिएट करना है। तो ये एक फॉर्म है जो आप प्लीज भर दीजिए। तो मैं अभी एक स्क्रीन शेयर करके आपको वो एक फॉर्म बता देती हूँ। एक मिनट। इसके बाद एक चीज और दिखाइएगा। यस सॉरी, सर। कि हम अपने टीम का जो कॉल्स हैं, परफॉर्मेंस है, वो ओवरऑल व्यू कैसे देख सकते हैं एज अ श्योर सर। ऑर्गेनाइजेशन। ओके। हमारे टीम में 7 लोग हैं सेल्स में, या 5 लोग हैं, जो भी हैं, उन सब ने क्या क्या किया, क्या कैसे ट्रैक कर सकते हैं, वो आप थोड़ा। ओके। श्योर सर। इंटरनेट इशू है, मुझे लीव आई थी। मैं फिर से क्रिएट कर देती हूँ। हाँ, तो ये प्रोफाइलिंग कैसे वर्क करता है वो मैं आप सबको बता देती हूँ थोड़ा ब्रीफ में। कि जैसे मैं यहाँ पे इस प्रोफाइलिंग असेसमेंट डालती हूँ, तो इससे सीआरएम को आइडेंटिफाई हो जाता है कि मुझे इस कस्टमर का रिस्क प्रोफाइलिंग करना है। तो उस केस में हमने व्हाट्सएप के एपीआई के थ्रू एक फॉर्म बना के रखा है, जिसमें आई हैव एडेड 6 to 7 डिफरेंट क्वेश्चंस, जिसके बेसिस पे अगर मैं, मेरा क्लाइंट उसके अंदर आंसर्स फिल करता है, तो वो आंसर्स कैप्चर हो जाएंगे सीआरएम में अपने आप। यहाँ पे जो रिस्क प्रोफाइलिंग का सेक्शन है, ये क्वेश्चंस उनको व्हाट्सएप पे एक ही फॉर्म में पूछे जाएंगे, जो व्हाट्सएप का इनबिल्ट फॉर्म है। दे डोंट हैव टू क्लिक ऑन एनी लिंक, और उनको व्हाट्सएप से बाहर जाके किसी गूगल फॉर्म में या किसी जोहो फॉर्म में फिल करने की जरूरत नहीं है। वो व्हाट्सएप के अंदर इनबिल्ट फॉर्म आएगा, जिसमें वो लोग ये आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। इट टेक्स लेस देन 2 to 3 minutes। फिर उसमें 7 क्वेश्चन है, 7 to 8 क्वेश्चन, जिसको हम कस्टम भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के बेस जो आंसर्स आएंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होगा, स्कोरिंग होगी। स्कोरिंग के बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इनका रिस्क कैटेगरी क्या है। ओके, तो ये रिस्क कैटेगरी आ गया। नाउ ऐसा होता है कि बेस्ड ऑन सेबी मैंडेट्स एंड सेबी रेगुलेशंस, हमें ये रिस्क कैटेगरी जो है, वो रिस्क प्रोफाइलिंग जो है, वो एवरी आफ्टर सम पीरियड हमें अलग अलग तरीके से करते रहना होता है। ठीक है, उनका इन्वेस्टमेंट्स हम जब भी कुछ न्यू स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले ये रिस्क प्रोफाइलिंग करना होता है। तो जो हमें पास डिटेल्स है कि पहले उनकी रिस्क प्रोफाइल क्या रही है, ये भी सेव करना होता है। इस केस में मैं यहाँ पे भी मैनेज कर सकती हूँ कि उनकी पास्ट में रिस्क प्रोफाइल क्या रही है और अभी रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो हो सकता है कि 2-3 साल पहले जब रिस्क कैटेगरी हमने उनसे फॉर्म भरवाया था, एट दैट टाइम इट वाज एग्रेसिव, बट नाउ बिकॉज ऑफ लाइफ सम लाइफ चेंजिंग इवेंट और एनी अदर मेजर इवेंट्स इन देयर लाइफ, हो सकता है कि वो एग्रेसिव से मॉडरेट में आ गया। तो यहाँ पे मुझे भी मिलेगा कि प्रीवियसली उनका रिस्क प्रोफाइल क्या था और अभी उनका रिस्क प्रोफाइल क्या है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो
ये हमने जो पूरा रिस्क प्रोफाइल ऑटोमेट किया उसका है। इसके अलावा मुझे एक और चीज बतानी है, उसके बाद जो सर ने जैसे मेंशन किया कि टीम का ट्रैकिंग और टीम का प्रोडक्टिविटी मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो मैं शेयर करती हूँ। जैसे कि ये लिमेश पारेख है, ये मैंने आपको एक क्लाइंट का बताया। सिमिलरली अगर मुझे फैमिली व्यू में ये सारी चीजें देखनी है कि पारेख एंड फैमिली है, और मुझे देखना है कि पारेख एंड फैमिली में जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उन सबका डेटा एग्रीगेटेड एक जगह पे देखना है, तो मुझे यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इस फैमिली के अंदर कितने क्लाइंट्स हैं वो मुझे दिख गया। इस पूरी फैमिली के कितने इंश्योरेंस हमने किए हुए हैं, कितने क्लेम्स किए हुए हैं, पोर्टफोलियो डिटेल्स में क्या क्या है, पूरी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके एग्रीगेट अटैचमेंट्स मुझे साथ में स्टोर करने हैं, या फिर कितने कॉल्स हुए हैं, कितनी मीटिंग्स हुई है। ओके, ऑल ऑफ दैट मुझे अगर एक सेंट्रल जगह पे स्टोर करना है तो फैमिली लेवल पे वो हमें मिलेगा। ओके, तो हमने क्लाइंट्स देखा, फैमिली देखा, लीड्स देखा। सिमिलरली अगर हमें टास्क ऐड करने हैं, मुझे फैमिली रिलेटेड या क्लाइंट रिलेटेड कोई भी टास्क है तो मैं यहाँ से क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, अब लेट्स से कि मुझे इंश्योरेंस रिलेटेड डिटेल्स भी सीआरएम में मैनेज करनी है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग आप जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड करते हैं उस वो आपने कहीं पे एक्सेल में या किसी और सॉफ्टवेयर में किसी तरह मैनेज किया होगा। ठीक है, कहीं पे इंश्योरेंस मैनेज किया होगा, कहीं पे उसके रिलेटेड जो भी क्लेम्स हुए हैं वो मैनेज किया होगा। तो सीआरएम में हमने इंश्योरेंस मैनेजमेंट का क्या बनाया है वो मैं एक बार आपसे शेयर करती हूँ। जैसे कि इंश्योरेंस ट्रैकर है, तो उसमें मेरा जो भी एग्जिस्टिंग डेटा होगा वो तो मैंने डाल ही दिया। लेकिन लेट्स से कि न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने किसी को दी है और मुझे उसकी डिटेल्स भी सीआरएम में स्टोर करनी है, तो आई डोंट हैव टू क्रिएट इट मैनुअली कि ये नाम था पॉलिसी का, ये स्टार्ट डेट, ये एंड डेट, ये नॉमिनी का नेम। आई डोंट हैव टू एंटर एवरीथिंग मैनुअली। अगर मेरे पास उस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है तो मैं ऐसे सिंपली वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकती हूँ और वो ऑटोमेटिकली सीआरएम में उसका रिकॉर्ड बन जाएगा। ओके, ये मैंने डॉक्यूमेंट चूज कर लिया और मैं यहाँ से अपलोड कर सकती हूँ। अभी मेरे पास वो डमी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है इस डेस्कटॉप में, वरना ये मैं आपको पूरा करके बताती हूँ। तो आपका जब भी वन ऑन वन डेमोन्स्ट्रेशन होगा वी कैन श्योरली डेमोन्स्ट्रेट दैट। ये इंश्योरेंस एक बार डॉक्यूमेंट्स भर देती हूँ मैं, उसके बाद कैसा दिखता है तो वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ यहाँ तक। जैसे ये मेरी पूरी लिस्ट आ गई जितने भी मेरे पॉलिसीज मैंने आज तक करवाया है उसकी। ठीक है, तो इसमें ये एक है, ये चैटर्जी व्हीकल पॉलिसी, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेती हूँ। तो इन्होंने मुझसे व्हीकल इंश्योरेंस लिया था, तो इसमें पॉलिसी नंबर, पॉलिसी की कौन सी कंपनी का था, मेरा इंश्योर्ड अश्योर्ड सम क्या था, पॉलिसी का स्टेटस क्या है अभी, ऑल दीज डिटेल्स आई कैन सी है ना। ऐसा हो सकता है कि मेरा सॉरी, तो इसमें जस्ट अ मिनट। हाँ, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि हमने इंश्योरेंस जिस पर्सन के लिए इशू किया है, कॉन्टैक्ट पर्सन उस केस में कोई और है। जैसे कि अगर किसी माइनर के लिए हमने इशू किया है या किसी ओल्ड एज पर्सन के लिए इशू किया है तो उसमें हो सकता है कि कॉन्टैक्ट पर्सन इज समवन एल्स। तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट पर्सन अलग से और उनका कॉन्टैक्ट पर्सन का फोन कौन सा, ईमेल एड्रेस कौन सा, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर पॉलिसी पॉलिसी रिलेटेड दूसरी डिटेल्स जैसे कि कितने टर्म मंथ्स के लिए है, ईयर्स के लिए है, प्लान का नेम क्या है, बिजनेस टाइप। बिजनेस टाइप मतलब कि ये मेरे पास न्यू बिजनेस है, ये शायद मैं किसी पॉलिसी का रिन्यूअल कर रही हूँ, पोर्ट कर रही हूँ, रोल ओवर कर रही हूँ, तो ये आई कैन डिफरेंशिएट हियर बेस्ड ऑन दैट। फिर स्टार्ट डेट एंड डेट क्या है, मेरा प्रीमियम का अमाउंट कितना है। अगर डॉक्यूमेंट मुझे अपलोड करना है पॉलिसी वाला तो मैं यहाँ से अलग से भी अपलोड करके रख सकती हूँ, और अगर आपने अपलोड करके ही बनाया तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, अलग से अपलोड नहीं करना पड़ेगा। Then all your policy related details can be captured here, including नॉमिनी कौन है, नॉमिनी का नाम क्या है, नॉमिनी के साथ रिलेशनशिप क्या है। ओके, और अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू पॉलिसीज सेल करते हैं या देते हैं तो वो एजेंसी का नाम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वाई? Vishali, बिकॉज we can shorten the detailing because यस सर, you can just show the summary how it is being, how one can see this. श्योर सर, देन आई विल गेट ऑन द रिपोर्ट्स। एक हो जाता है कि देखना है कि मेरे अगर सेल्स टीम में 5 जन है तो मुझे ये देखना है that which member is doing well, which member is not doing well and needs a push maybe,
तो उस केस में आई वांट टू सी फ्यू डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि who's done most of the meetings, किसके अभी ज्यादा clients है जो इस महीने में close हुए हैं, या I want to maybe see it on based on the number of clients closed or maybe based on the amount that they have closed. Okay, तो एक ये है। तो इस रिपोर्ट में मुझे ये भी दिखा कितनी लीड्स मेरी कन्वर्ट हुई है और कितनी लीड्स मेरी कन्वर्ट नहीं हुई, बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट एंड बेस्ड ऑन द अमाउंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये is तो ये मेरा मंथली लीड जनरेशन रिपोर्ट है, जहाँ पे मैं स्टेटस वाइज ये चेक कर सकती हूँ कि अभी लीड कौन से स्टेज पे। जैसे कि मार्च मंथ का मैंने ले लिया है, तो मार्च मंथ में आई हैव टोटल 28 लीड्स जो मार्च मंथ में बनी थी, उसमें से 9 कन्वर्ट हो गई है या कंप्लीट हो गई है, 4 ऐसी है जो इन प्रोसेस है, 13 है जो अभी न्यू है, मतलब अभी अभी आई है हमारे पास, और 2 ऐसी है जो ऑनबोर्डिंग के स्टेज पे है। ठीक है, अभी मुझे इंस्टेड ऑफ लीड स्टेटस मुझे देखना है कि ये इसके ऊपर कौन काम कर रहा है अभी। ठीक है, तो मैं ये देख यहाँ पे और मतलब कि कौन मेरा रिलेशनशिप मैनेजर कौन है, हु इज वर्किंग ऑन दिस, सेल्स पर्सन वाइज अगर मुझे देखना है। तो ये आ गया। तो लेट्स से कि आदित्य के पास एक लीड पड़ी है, ठीक है, और उसका स्टेटस क्या है, तो वो मैं यहाँ से देख सकती हूँ। या फिर यहाँ पे जो मेबल का दिख रहा है, तो मेबल हैज 4 लीड्स जिन पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक्सपांड करते हुए आई कैन सी कि 2 इन प्रोसेस है और 2 न्यू है। ओके, ये रही, ये 2 न्यू लीड्स है। हम्म। ठीक, ओके, तो कौन से स्टेज पे वो लीड पड़ी है, दैट आई कैन आइडेंटिफाई। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस आई आल्सो वांट टू सी कि इनका टोटल अभी बिजनेस एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या है। तो जैसे कि मेबल के पास 4 लीड्स पड़ी है, तो उसका एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या है, या फिर हया के पास 5 लीड्स है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट। ओके, तो एंड आई कैन ऑल्सो सी व्हाट इज द स्टेटस राइट नाउ। सो देर आर 5 डिफरेंट वेज जिसके बेसिस पे मैं यहाँ पे एनालिसिस कर सकती हूँ। एक तो मुझे ये दिख रहा है कि ये मेरा मंथ का मुझे यहाँ से फनल दिख जाएगा कि इस महीने में कितनी क्लोज होगी और कितनी नेक्स्ट मंथ में शायद रोल ओवर हो जाएंगी, और कौन से प्रोडक्ट के लिए होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे ओनर का बाइफरकेशन डाला है, आई कैन ऑल्सो बाइफरकेटेड बेस्ड ऑन कौन से प्रोडक्ट के लिए आ रही है। आई कैन ऑल्सो बाइफरकेटेड बेस्ड ऑन कि ठीक है, जो मेरे इतना पास। डिटेल में मत जाइए, मतलब ओवरऑल हम ये देखना चाहते हैं हमारे 5 लोग हैं, हर 5 लोग का क्या स्टेटस है, किसने 10 सेल क्लोज की है, 5 की है, क्या की है। मेरे को सिर्फ समरी देखनी है। इज दैट पॉसिबल? और उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन आंसर ले लीजिए, आई थिंक दैट विल बी, बिकॉज अभी और टाइम नहीं बचा है। तो ये जो मैंने बताया सिमिलरली और मैट्रिक्स रिपोर्ट और समरी रिपोर्ट व्हिच यू वांट, व्हिचएवर यू वांट टू कॉल इट, तो मैं ये वो भी बता देती हूँ। उसमें मुझे जहाँ पे ये डिटेल्स दिख रहे थे, देयर आई विल बी एबल टू सी इट बेस्ड ऑन नंबर्स। नहीं, आपने जो रिपोर्ट दिखाया दैट इज क्लियर। अगर और भी समरी शॉर्ट फॉर्म में कुछ दिखता है तो दिखा दीजिए, अदरवाइज वी तो कैन जस्ट हैव क्वेश्चन। हाँ, इसमें क्योंकि बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं तो यहाँ पे ये नंबर्स ऐसे दिख रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली मुझे समरी दिख जाएगी, अगर लेट्स से यस, आपके 5 दिस ही इज टीम मेंबर्स लिख, तो इन प्रोसेस में उनकी कितनी लीड्स है, ऑनबोर्डिंग लेवल पे कौन सी है, कितनी कन्वर्ट हो गई, कितनी लॉस्ट हो गई। नाउ दिस इज हियर आई कैन सी फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर मुझे ये भी देखना है कि अप्रैल में मेरा फनल कैसा दिख रहा है, तो आई कैन ऐड फिल्टर्स बेस्ड ऑन दैट। ओके, दिस इज गुड। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। यस। Okay, so that's it from my side. If there are any questions, and with us, we also have Tawfiq sir from my team. Hi, sir. So, Nimesh ji and team, आपका thank you for the presentation. So, first of all, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ अलग अलग जगह से सर्विसेज ले रहे हैं,
जैसे मैंने सर्विस लिया है डिजिटल मार्केटिंग का एक जगह से, हमारा जो एम्प्लॉय है उनके सीआरएम अलग है या एजेंट्स का सीआरएम अलग है, और अभी मेटा के पास मेरा दिया हुआ है कि वेबसाइट में मेरा जो नाम है उसको देख के आप जो है इंटीग्रेट करिए या ब्लू टिक वेरीफाइड कीजिए। तो ये सारा सर्विसेज क्या आपके यहाँ से एक जगह से हो जाएगा? मेरा ये क्वेरी क्वेश्चन था जो मैंने डाला था। हाँ सर, तो इसमें आपने दो चीजें मेंशन की। एक है कि आप मार्केटिंग के लिए जो व्हाट्सएप ने टूल लिया है या ब्लू के लिए लिया है, तो वो हमारा एक अलग प्रोडक्ट है, संदेश चैट, विच इज वेरी वेल इंटीग्रेटेड विद द सीआरएम सॉफ्टवेयर जिसका मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेशन किया। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हमारे काफी सारे क्लाइंट्स दोनों साथ में यूज करते हैं, तो दोनों सर्विसेज आपको हमारे पास से मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि जो हम हमारा लीड होगा वो अल्टीमेटली हम्म। सीआरएम में जाएगा, और फिर सीआरएम में जाएगा वही डिस्ट्रीब्यूट होगा एम्प्लॉय को या एजेंट्स को होगा। यस। पॉसिबल। यस सर। फिर अगर ऐसा है कि जैसे ही लीड आता है, मुझे एक लीड नर्चरिंग कैंपेन चालू करना है कि डे वन को ये बिजनेस मेरा कंपनी का प्रोफाइल उनको सेंड हो जाना चाहिए, फिर 2 दिन बाद इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक डिटेल्स चले जाना चाहिए, तो वो उसका मैं सीक्वेंस बना के अपने आप फायर कर सकती हूँ, जो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप के थ्रू जाता रहेगा। और जैसे एआई एनेबल्ड रहेगा तो ऑटोमेटिकली एक वेलकम मेल चला गया या वेलकम मैसेज चला गया, ये दैट्स विल बी आल्सो डन। हाँ सर, उसका एक कैंपेन बनेगा, कैंपेन में आप सिलेक्ट कर लो कि आपको कौन से 5 मैसेज भेजने हैं, वो अपने आप फायर होते ओके फाइन। हैं। यस सर। एनीवन एल्स हैज एनी ये क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन ये है कि ये जो कॉल्स रिकॉर्डिंग है तो ये सभी लोगों की होगी, टीम मेंबर्स की, या केवल एक पर्टिकुलर पर्सन की होगी, या सारी कॉल्स होंगी कि नहीं होंगी? हाँ, और ये सारी और सीआरएम में सारी सेव करनी है, मतलब क्या है इसका थोड़ा प्रोसीजर बताइए। तो सर मैंने दो चीजें बताई। एक स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कॉल एनालिसिस, वो रिकॉर्डिंग के बेसिस पे होता है, तो मैंने अगर बात की और उस कॉल को मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड किया है, तो मैं सीआरएम को दे सकती हूँ, मुझे एनालिसिस करके देगा। दूसरा मैंने बताया था कि कॉल्स लॉग होते हैं सीआरएम में। लॉग होते हैं मतलब कि अगर मैंने फोन में लॉगिंग एनेबल किया है, दैट विल आल्सो हैव, यू कैन एनेबल इट इन 3 डिफरेंट वेज। एक होता है कि मेरा ऑफिस का ही फोन है जो मैंने अपने टीम मेंबर्स को दिया हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि उनके जितने भी कॉल्स हैं जो वो लोग ऑफिस के फोन से कर रहे हैं, सारे ही लॉग होने चाहिए। तो आई कैन लॉग ऑल कॉल्स। अगर ऐसा है कि वो अपने पर्सनल फोन यूज करते हैं जिसमें पर्सनल कॉल भी आता है और ऑफिस के कॉल्स भी आते हैं, तो मैं उसमें ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हूँ कि सीआरएम में जितने नंबर है ना, आप उसको ही लॉग करो, जो उनके पर्सनल नंबर्स आ रहे हैं उसको लॉग मत करो। तो आई हैव एन ऑप्शन कॉल्ड लॉग सीआरएम नंबर्स ओनली। फिर तीसरा ऑप्शन आता है कि हर एक कॉल लॉग करने से पहले मुझे पूछो कि लॉग करना है कि नहीं करना है। तो विद एवरी कॉल वो मुझे ऑप्शन देगा कि लॉग यस, नो, ऑलवेज या नेवर। ऑलवेज मतलब कि वो उसके बाद हमेशा लॉग करेगा ही, नेवर कर दिया तो उसको ब्लैकलिस्ट हो जाए, उसको वो कॉल का लॉग कभी सीआरएम में लेगा नहीं। यस करूंगी तो अभी वो लॉग करेगा, नो करूंगी तो लॉग नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें अननोन नंबर से कॉल आता है और बाद में पता चलता है कि ये तो प्रोस्पेक्टिंग क्लाइंट था। हाँ, तो उस केस में हम क्या करें, क्योंकि उस समय तो हम अगर वो तो उससे आपका कॉल पूछता है। पे बात हो गई, कॉल पे बात हो गई, उसके बाद वो पॉपअप आएगा ना, तो आप उसको यस कर दो। अच्छा, कॉल पे बात होने के बाद पॉपअप आएगा कि ये इस सीआरएम में जाना है कि नहीं जाना? रिकॉर्ड तभी यस। कर रहा होगा वो? मतलब हाँ, रिकॉर्डिंग हर कॉल की होगी? रिकॉर्डिंग आपका मोबाइल का फीचर होना चाहिए, मतलब अगर आपके फोन में रिकॉर्डिंग आपने ऑन कर रखा है, तो आपका फोन कॉल को रिकॉर्ड कर लेगा। जो संचय की एप्लीकेशन है वो उस कॉल को सिर्फ लॉग करेगी। ओके। यस सर। मीन टू से कि हर कॉल हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए? सर आपका जब अननोन नंबर से कॉल आएगा तो पॉपअप से ही लीड वहां से ही क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आपका कॉल पे आइडेंटिफाई होगा कि आपका प्रोस्पेक्ट है, तो उस पॉपअप में ही ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ से यू कैन क्रिएट अ लीड, तो आप वहां से क्रिएट लीड कर दो, तो उस कॉल के बेसिस पे सिस्टम में लीड क्रिएट हो जाएगा। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ डेट मीन टू से कि हमें हर एक कॉल अपनी रिकॉर्ड करनी होगी, और उसके बाद से क्या कहते हैं, बैट उसको फिल्टर करना होगा, ये हमारा से क्या कहते हैं, लीड है या नहीं, प्रोस्पेक्ट है या सीआरएम से रिलेटेड है कि नहीं? हाँ,
हाँ सर, उसमें अगर आपको सीआरएम में सिर्फ लॉग करना है तो उसके लिए कॉल रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। जिस कॉल का आपको एनालिसिस चाहिए सिर्फ उसी कॉल को आप रिकॉर्ड करके सीआरएम में डालिए। ओके, ग्रेट, यस सर। थैंक यू। एंड प्राइसिंग पे भी अगर आप आ जाते तो अच्छा था। श्योर सर। तो दो चीजें हमने डिस्कस की थी, एक जो सीआरएम प्लेटफॉर्म है वो, और दूसरा जो संदेश चैट है वो। संदेश चैट हमारा व्हाट्सएप एपीआई प्लेटफॉर्म है, उसको हम अलग रखते हैं। सीआरएम जो संजय सीआरएम है उसकी कॉस्टिंग है 12,000 रुपीज पर यूजर पर ईयर, जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है। और अगर मंथली होता है तो 1,200 रुपीज पर यूजर पर मंथ। ओके, तो वो ईयरली सब्सक्रिप्शन में हम 20% ऑफ कर देते हैं। फिर आता है दैट इज सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, जो ईयरली होता है। एंड फिर एक होता है जो ऑनबोर्डिंग के वक्त या फिर वन टाइम पेमेंट होता है, जिसमें आपकी टीम को ट्रेन करना है या फिर आपका हैंड होल्डिंग करना है, आपको एग्जैक्टली कौन से प्रोसेस में क्या चेंजेस करने हैं या फिर सीआरएम लेवल पे जो चेंजेस करने हैं, वो सब कुछ आपको प्रिपेयर करके दिया जाता है अलॉन्ग विद ट्रेनिंग एंड हैंड होल्डिंग। दैट इज वन टाइम कॉस्ट 35,000 रुपीज ऑन। दिस इज फॉर संजय सीआरएम जिनकी टीम्स होती है। हेलो। Yeah, great. You can write down my number and give me demo on Saturday with Sandesh chat also. श्योर।